Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about Buckingham Pi method. This is a method of dimensional analysis. We all are familiar with dimensions and dimensional homogeneity, which states that every term in an equation, when reduced to fundamental dimensions, must contain identical powers of each dimension. And what is dimensional analysis? It is a mathematical technique which makes use of study of dimensions for solving several engineering problems. So, dimensional analysis has become an important tool for analyzing fluid flow problems, and it is especially useful in presenting experimental results in a concise form. So, there are many different methods of dimensional analysis, uh, among which one is Buckingham Pi method, which we will discuss in detail. So, with the help of dimensional analysis, the equation of a physical phenomena can be developed in terms of dimensionless groups or parameters, and thus reducing the number of variables. The method of dimensional analysis are based on Fourier's principle of homogeneity. The methods of dimensional analysis are Rayleigh's method, Buckingham Pi method. In our course, Buckingham Pi method is included, so we will study this in detail. So let's start. What is Buckingham's Pi method or theorem? When a large number of physical variables are involved, Rayleigh's method of dimensional analysis becomes increasingly laborious and cumbersome. Buckingham's method is an improvement over Rayleigh's method. Buckingham designated the dimensionless group by the Greek capital letter pi. It is therefore often called Buckingham Pi method. The advantage of this method over Rayleigh's method is that it let us know in advance of the analysis as to how many dimensionless groups are to be expected. अभी हम इसको जब डिटेल में करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि ये मेथड क्या है और इसका पर्पस क्या है. रिलेस मेथड पहले यूज़ होता था बट अब वो ऑब्सोलीट हो गया है और बकिंगम पाई मेथड ही यूज़ हो रहा है क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इंक्रीज़ हो जाएँ तो वहाँ पे रेलेज़ मेथड आपका वर्क नहीं करता, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टायरिंग है, इसलिए आप बकिंगम पाई मेथड यूज़ करते हैं. बकिंगम पाई मेथड में डिफरेंट डायमेंशनलेस ग्रुप्स बन जाते हैं जिन्हें पाई ग्रुप्स कहा जाता है और उनकी हेल्प से डायमेंशन एनालिसिस परफॉर्म की जाती है. सो बकिंगम पाई मेथड को स्टार्ट करेंगे. पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं. इट स्टेट्स दैट इफ देयर आर n variables, both dependent and independent, in our dimensionally homogeneous equation, and if these variables contain m fundamental dimensions, such as m, l, t, etc., then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. These dimensionless terms are called pi terms. आपके पास कोई भी फ्लूइड फिनोमेना गिवन होगा, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. सम वेरिएबल्स विल बी डिपेंडेंट एंड सम विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ऑल दीज वेरिएबल्स विल बी काउंटेड एज n variables. Whatever their number will be, it will be written against n. Then you will note the dimensions of those variables. Dimensions, fundamental dimensions, all of you are familiar that these are MLT or FLT. If you are working in MLT, then three fundamental dimensions are M, L, and T. So they will be M fundamental dimensions. If all the three dimensions are involved, then the M value will be 3. Otherwise, it will depend that how many dimensions are included in the variables. Then we will make dimensionless terms, and that dimensionless terms will be equal to n minus m. And these dimensionless terms will be known as pi terms. Mathematically, if any variable x1 depends on independent variables x2, x3 up to xn, the functional equation may be written as x1 equals f, x2, x3 up to xn. This equation can also be written as f1
x1, x2, x3 up to xn equals 0. It is a dimensionally homogeneous equation and contains n variables. ये आप देखें xn means n variables. If there are m fundamental dimensions, then according to Buckingham's pi theorem, this equation can be written in terms of number of pi terms. What is pi? Dimensionless groups, in which number of pi term is equal to n minus m. Hence, this equation becomes f1. अगर हम इसको pi की फॉर्म में लिखेंगे, then pi1, pi2, pi3 up to pi n minus m. अगर वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं देन अप टू n वेरिएबल्स से जा रहा है. अगर पाई की फॉर्म में जा रहे हैं देन पाई की वैल्यूज होंगी अप टू n minus m, where n is number of variables and m are the number of fundamental dimensions involved. So each dimensionless pi term is formed by combining m variables out of total n variables with one of the remaining variables, that is each pi term contains m plus 1 variables. These m variables, which appear repeatedly in each of pi term, are consequently called repeating variables and are chosen from among the variables such that they together involve all the fundamental dimensions and they themselves do not form a dimensionless parameter. Let in the above case x2, x3 and x4 are repeating variables. If the fundamental dimensions m equals 3, then each term is written as pi1 equals x2 power a1, x3 power b1, x4 power c1 into x1. Pi2 will be x2 power a2, x3 power b2, x4 power c2 into x5. And pi n minus m equals x2 power a1, x2 power a n minus m, x3 power b n minus m, x4 power c n minus m into xn, where a1, b1, c1, a2, b2, c2, etc. are the constants which are determined by considering dimensional homogeneity. These values are substituted in this equation and values of pi1, pi2, pi3 are obtained. These values of pi's are substituted in then the previous equation, in this equation, and the final general equation for the phenomena may then be obtained by expressing any one of the pi terms as a function of other, as pi1 is function of pi2, pi3, pi4 up to pi n minus m, or pi2 is function of pi1, pi3, pi4 up to pi n minus m. So this is a new topic. You may find some difficulty at the start, but when we will do the procedure or we will solve a numerical, then you may have some clear concept about the Buckingham pi method. So इसमें हम ये करेंगे कि कुछ जो आपके जितने भी variables involve हैं, for example n वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक फ्लूइड फिनोमेना में, उसमें से कुछ वेरिएबल्स को हम रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट करेंगे और कुछ को हम प्राइमरी वेरिएबल्स सेलेक्ट करेंगे. जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे वो जितने भी आपके पाई टर्म्स बन सकती होंगी उनमें हर पाई टर्म में रिपीट हो रहे होंगे. जैसे आप यहाँ देखें x2, x3, x4 सब पाई टर्म्स के साथ रिपीट हो रहे हैं. और जो कुछ प्राइमरी वेरिएबल्स होंगे वो ओनली किसी एक पाई टर्म के साथ इंक्लूड होंगे. लाइक x1 यहाँ पे इंक्लूडेड है, बाकी दोनों में नहीं आ रहा है. देन x5 सिर्फ इसके साथ रिलेटेड है, बाकी pi1 और pi n minus m में शामिल नहीं है. इनको आपने सेलेक्ट किस तरीके से करना है कि जो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो आपने कैसे सेलेक्ट करने हैं और प्राइमरी वेरिएबल्स कौन से होंगे, इसका प्रोसीजर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. So selection of repeating variables. The following points should be kept in view while selecting m repeating variables. Number 1. M repeating variables must contain jointly all the fundamental dimensions involved in the phenomena. Usually the fundamental dimensions are m, l and t. However, if only two dimensions are involved, there will be two repeating variables and they must contain together the
2 dimensions involved. आपके पास जो भी फ्लूइड फिनोमेना है उसमें जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी डायमेंशंस आप लिस्ट डाउन कर लेंगे. देन जो भी रिपीटिंग वेरिएबल्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पे एम एल और टी अगर शामिल हैं तो ऐसे वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं जिसमें ये तीनों डायमेंशंस कहीं ना कहीं पे आ रही हों. Number 2, the repeating variables must not form the non-dimensional parameters among themselves. Number 3, as far as possible, the dependent variable should not be selected as repeating variable. Number 4, no two repeating variables should have same dimensions. Number 5, the repeating variable should be chosen in such a way that one variable contains geometric property, for example length, diameter, height, etc. Other variable contains flow property, for example velocity, acceleration, etc. And third variable contains fluid property, for example mass, density, weight density, dynamic viscosity, etc. इसमें आप देखें तो तीनों डायमेंशंस इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगी. अगर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो L डायमेंशन आ जाएगी, फ्लो प्रॉपर्टी को देख रहे हैं तो T की डायमेंशन इसमें शामिल हो जाएगी, और अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे तो M फंडामेंटल डायमेंशन इंक्लूड हो जाएगी. इस तरीके से MLT तीनों डायमेंशंस इंक्लूड हो जाएंगी आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स में. द चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स इन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स में बी LV रो, DV रो, LV mu, DV mu, etc. etc. So now we will solve a numerical and you will get a clear concept about the selection of the repeating variables, formation of pi groups, and the dimensional analysis by Buckingham pi method. So there is an example. The resistance R experienced by a partially submerged body depends upon the velocity v, length of the body L, viscosity of the fluid mu, density of the fluid rho, and gravitational acceleration g. Obtain our dimensionless expression for R. तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एक फ्लूइड फिनोमेना बताया गया है. आपने एक डायमेंशनलेस एक्सप्रेशन ऑब्टेन करनी है फॉर R. व्हाट इज R? R इज रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, और बहुत से वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं जिसमें वेलोसिटी, लेंथ, विस्कोसिटी, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन शामिल है. So in the first step you will write the resistance R is a function of these 5 variables which are listed in the question. So mathematically you can write this statement as R equals function of velocity, length, viscosity, density and gravitational acceleration. और अब जिसको दूसरा जो वे था जो हमने डिस्कस किया था, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. F1 into R V L mu rho G equals 0. ठीक है, दो एक्सप्रेशंस हैं जिस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. एक ये है कि जो आपने जिसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे एंड लिखेंगे दिस इज अ फंक्शन ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल्स, आप इज द राइट साइड पे लिख देंगे. सेकंड मेथड ये है कि आप F1 फंक्शन 1 इज आप जितने भी वेरिएबल्स हैं इंक्लूडिंग दैट वेरिएबल जिसके लिए आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है उसको भी बीच में ही शामिल कर देंगे और सारे वेरिएबल्स इकट्ठे लिख के इक्वल्स टू 0. तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अब आप काउंट कर लें जितने भी वेरिएबल्स हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो 6 वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं. 6 वेरिएबल्स आपने काउंट कर लिए. नाउ अब आपने दिस इज वैल्यू ऑफ n. सेकेंड चीज में m थी. m क्या थी? नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस. वो हमने चेक करने के लिए सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी डायमेंशंस हम राइट कर लेंगे. सो r इज रेजिस्टेंस फोर्स. its dimensions are mlt minus 2. वेलोसिटी की डायमेंशन lt minus 1. विस्कोसिटी की डायनामिक विस्कोसिटी इसकी डायमेंशन ml minus 1 t minus 1. Density is ml minus 3 and acceleration due to gravity is lt minus 2. ये सारे प्रोसीजर डायमेंशंस का ये हमने स्टार्ट में किया हुआ है. इस सबसे आप फेमिलियर हैं, सो यू कैन इजीली राइट द डायमेंशंस ऑफ ऑल द वेरिएबल्स.
अब आप ये चेक करें कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें कहीं ना कहीं m इंक्लूडेड है। यस, m यहाँ आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो m इंक्लूडेड है। देन आपने चेक करना है l है कहीं ना कहीं पे किसी भी एक वेरिएबल में। यस, l है, सो l भी हो गया। नेक्स्ट आपने t टाइम को चेक करना है, वो भी किसी ना किसी वेरिएबल में है, सो t भी हो गया। सो तीनों फंडामेंटल डायमेंशंस कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्व हैं। सो m की वैल्यू आपने 3 लिख देनी है। ये नहीं देखना कि MLT हर वेरिएबल के अंदर हो, किसी के अंदर l होगा, किसी में t होगा, किसी में m होगा, पर कहीं ना कहीं जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उसमें m, l और t इंक्लूडेड हैं तो m की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, उसमें आपने काउंट करना है कि कितने पाई टर्म्स बन सकेंगे। तो पाई टर्म्स बनेंगे n minus m। So number of dimensionless pi terms will be equal to n minus m। n की वैल्यू आपकी 6 थी, m की वैल्यू 3, so डिफरेंस आ गया है 3। इसका मतलब है 3 डायमेंशनलेस पाई टर्म्स आप बना सकेंगे। इनको आप पाई 1, पाई 2, पाई 3 का नाम दे देंगे। अब आपकी जो इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं f1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 इक्वल्स 0। Now step 2, selection of repeating variables। अब आपके पास 6 वेरिएबल्स थे, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कितने वेरिएबल्स आपके रिपीटिंग होंगे एंड कितने आपके प्राइमरी वेरिएबल्स होंगे। Since 3 pi terms are to be formed, so number of primary variables will be 3 and the remaining variables will be repeating variables। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट कंडीशंस थी कि आपने किसको रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करना है और किसको नहीं सेलेक्ट करना है। तो r इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल, क्योंकि इसके लिए आपने एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, इसलिए इसको आप रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि दिस विल बी अ प्राइमरी वेरिएबल। Then out of the remaining 5 variables, one variable should have geometric property, second should have flow property, and third one should have fluid property. These requirements are met by selecting length, velocity, and density as repeating variables. The repeating variables themselves should not form a dimensionless term and must contain jointly all fundamental dimensions equal to m, that is 3 here. So dimensions जो है आपकी लेंथ, वेलोसिटी और डेंसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो l, lt-1 और ml-3 हैं। इसमें आप देखें तीनों वेरिएबल्स में m, l और t तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं। सो ये कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई and hence the 3 fundamental dimensions exist in these variables and also no dimensionless group is formed by them। ठीक है, डिफरेंट आपने कंडीशंस इसमें मीट कर ली हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको आपने प्राइमरी सेलेक्ट नहीं किया है, उनको आपने रिपीटिंग सेलेक्ट नहीं किया है, जिनको आपने रिपीटिंग सेलेक्ट किया है उसमें आपकी तीनों फंडामेंटल डायमेंशंस इन्वॉल्व हो रही थी। देन आपने कोई भी ऐसे 2 वेरिएबल्स सेलेक्ट नहीं किए जिनकी डायमेंशंस सेम हो। नाउ स्टेप 3 आपका है ईच पाई टर्म is written as given in the equation which we have studied, this is pi 1 equals, जितने भी आपके 3 पाई टर्म्स बन रही थी, अभी हमने देखा था पाई 1 पाई 2 पाई 3 3 टर्म्स बन रही थी। देन आपने 3 वेरिएबल्स को प्राइमरी कर दिया था जिसमें r, म्यू और g आपके प्राइमरी वेरिएबल्स हो गए और जितने भी रिमेनिंग थे वो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हो गए। तो जो रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं एल वी एंड रो, ये तीनों पाई टर्म्स के साथ लिखे जाएंगे और बाकी जो आपके प्राइमरी वेरिएबल्स थे वो सिर्फ एक पाई टर्म के साथ। r सिर्फ पाई 1 के साथ है, म्यू इज एसोसिएटेड विद पाई 2 एंड g इज एसोसिएटेड विद पाई 3। ये r, म्यू और g आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, मींस आप r को नंबर 2 पे भी लिख सकते हैं, g को नंबर 1 पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस आपके सोल्यूशन में नहीं आएगा।
सो जो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स हैं वो आपने हर पाई टर्म के साथ लिख दिए एंड देन उनकी आपने कोफिशिएंट्स उनकी पावर्स उनको अलॉट कर दी। पाई 1 के साथ जो है उनके लिए A1 B1 C1, पाई 2 के साथ A2 B2 C2 एंड पाई 3 के साथ A3 B3 C3। Then in step 4, each pi term is solved by the principle of dimensional homogeneity as follows. हम सारी पाई टर्म को 1 by 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम पाई 1 टर्म को देख लेते हैं। पाई 1 थी हमारे पास L A1 B B1 rho C1 into R. Since pi are the dimensionless terms, so it means that MLT सबकी पावर 0 है। देन जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी आप डायमेंशन एंटर कर देंगे और इनको जो भी पावर्स अलॉट हैं A1 B1 C1 वो आप लिख देंगे। प्राइमरी के साथ कोई पावर नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। देन आप 1 by 1 M L और T को सॉल्व करेंगे ताकि आप ये A1 B1 और C1 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकें। सो पहले हम M को देखते हैं। M की पावर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है एंड राइट हैंड साइड पे आप देखें ये MRS की पावर है C1 प्लस एक ये MRS की पावर है 1। सो 0 इक्वल्स C1 प्लस 1। यहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी -1। देन हम L को सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी पावर 0 है और राइट हैंड साइड पे पावर है A1 प्लस B1 -3C1 प्लस 1। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। A1 प्लस B1 और C1 के अंदर आप यहाँ की -1 वैल्यू आई थी वो एंटर कर दें प्लस 1। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर दें। देन T को सॉल्व करेंगे। T की पावर है लेफ्ट हैंड साइड पे 0 और राइट हैंड साइड पे -B1 -2। 0 इक्वल्स -B1 -2। इसको आपने जब सॉल्व किया तो B1 की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ये C1 और B1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में जब एंटर करेंगे तो आपके पास A1 की वैल्यू भी आ जाएगी, दैट इज -2। तो तीनों जो आपके पास थे A1 B1 C1 सारों की वैल्यू आपके पास आ गई है। इनको अब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पाई 1 क्या हो जाएगा L की पावर -2, V की पावर -2 एंड रो की पावर -1 इंटू R। तो जो पावर्स नेगेटिव में है इसको आप डिनोमिनेटर में राइट कर सकते हैं। सो पाई 1 विल बी इक्वल टू R डिवाइड बाय L स्क्वायर V स्क्वायर इंटू रो। सेम प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है टू सॉल्व पाई 2 एंड पाई 3। पाई 2 जो था आपका L2 V2 रो 2 इंटू म्यू था और इनकी पावर्स थी A2 B2 C2। सिमिलर प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है पाई टर्म के लिए MLT और उनकी पावर 0 क्योंकि ये डायमेंशनलेस नंबर है। और राइट हैंड साइड पे जितने वेरिएबल्स हैं सबकी डायमेंशन एंटर करके उनकी पावर्स A2 B2 C2 आपने एंटर कर देनी है। और सिमिलर प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है M L और T के लिए और जो पावर्स हैं A2 B2 C2 उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करके जो भी वैल्यूज आएंगी देन वो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देंगे और अपना फॉर्मूला डिराइव कर देंगे फॉर पाई 2। सो पाई 2 आपके पास आ जाएगा म्यू ओवर LV इंटू रो। Similar procedure will be adopted for pi 3 and you get the result for pi 3 as pi 3 आपके पास आ गया है LG over V square. Now in the last step you will substitute the values of pi 1, pi 2, pi 3 in the equation and the function relationship becomes ये आपकी क्वेश्चन 3 जो हमने स्टार्ट में क्वेश्चन के स्टार्ट में राइट डाउन की थी। अब यहाँ पे आप पाई 1 पाई 2 पाई 3 की वैल्यूज एंटर कर देंगे। सो F1 ये पाई 1 है कॉमा पाई 2 कॉमा पाई 3 इक्वल्स 0 और जिसको आपने फाइंड आउट करना था उसको आप
लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी जो पाई 1 टर्म में आ रही है। सो आर और एल स्क्वायर वी स्क्वायर रो इक्वल्स फाई, ये पाई 2 एंड ये है पाई 3 या इक्वल्स फाई। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, एल वी रो ओवर म्यू और ये है v ओवर अंडर रूट एल जी। ये हमने कैसे किया है, इन्वर्स कैसे ले लिया है और स्क्वायर रूट कैसे ले लिया है, क्योंकि ये जो आपकी टर्म्स हैं पाई 2 और पाई 3 ये डायमेंशन लेस टर्म्स हैं। तो डायमेंशन लेस टर्म्स को आप इन्वर्स लें या उसकी कोई पावर लें या उसका कोई स्क्वायर रूट लें तो डायमेंशन लेस टर्म को के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए आप डायमेंशन लेस टर्म्स का इन्वर्स भी ले सकते हैं, उनका स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं और उनकी कोई पावर भी उनको असाइन कर सकते हैं। सो इसलिए इस रूल को फॉलो करते हुए हमने इस पाई 2 का इन्वर्स लिखा है यहाँ पे और पाई 3 का स्क्वायर रूट ले लिया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये आपके जो डिफरेंट डायमेंशन लेस नंबर्स हैं जो आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए हैं, ये वो नंबर्स आपके बन रहे हैं। दिस इज रेनॉल्ड नंबर and this is your Froude number. So the above step has been made on the postulate that reciprocal of pi term and its square root is non-dimensional. So r equals, अब आपने इसको rearrange कर लिया है, r equals l square v square rho function of Reynolds number and Froude number.